السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ محترم جناب ڈاکٹر مزمل شاہ صاحب، جناب محترم خالد اکرم رانا صاحب، جناب محترم نبید افضال صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج میں بڑا خوش ہوں۔ اس لیے خوش ہوں، ہر آدمی اپنے دل میں کچھ تمنائیں، کچھ خواہشیں رکھتا ہے۔ میری ایک تمنا تھی، خواہش تھی کہ ہمارے ریاض کی فضا بڑی خوبصورت ہے۔ ریاض کے اندر جتنے گروپس ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، وہ سب کے سب آپس میں محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے گفتگو کرتے ہیں، اسٹیج پہ آتے ہیں، اختلاف رائے بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ ریاض کی کمیونٹی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور میری تمنا تھی ایک پلیٹ فارم ایسا بھی ہونا چاہیے جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہ ہو۔ ایک کائنات کے اندر شخصیت ایسی بھی ہے جن کے ساتھ سارے محبت کرتے ہیں، جن کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی مناسبت سے میں اپنے بھائی، اپنے دوست ڈاکٹر سید مزمل شاہ صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ جس وقت ہم نے محبان رحمت للعالمین کی گفتگو، اس کی بات کی، تو شاہ صاحب نے کہا یہ اعزاز مجھ کو دیجئے۔ رانا صاحب نے بھی کہا، میری اپنی پارٹی نے بھی کہا، تحریک انصاف والوں نے بھی کہا، پیپل پارٹی والوں نے بھی کہا، لیکن شاہ جی یہ جس کے مقدر میں آئے گا۔ الحمدللہ آپ بازی لے گئے، اور پھر کل میری ان کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ خان عبدالولی خان صاحب کو میں نے اس وقت دیکھا تھا جس وقت میری عمر 22 سال تھی۔ ہم پرانے سیاسی ورکر ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر رہتے ہوئے، اس وقت ان کا جوانی کا دور تھا، بڑے خوبصورت تھے، بڑے لمبے تھے۔ اور پھر میں نے کہا، رات میں نے خان عبدالخان رحمہ اللہ، باچا خان، ان کے بارے میں بھی پڑھا، ان کا عدم تشدد، اور میں نے کہا باچا خان نے یہ جو عدم تشدد کی بات کی ہے، اس کو بھی انہوں نے اگر لیا ہے تو وہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہاں کی زندگی جو ہے، مکے کی زندگی، مدنی زندگی، میرے نبی جو ہیں ان کے بارے میں میرے رب نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ میرے عزیزوں، ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، ہم کہا کرتے تھے، شاہ صاحب بھی کبھی کبھار گلا کرتے ہیں کہ جناب یہ غدار ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کوئی غدار نہیں ہے، سب محب وطن ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم سب کی منزل ایک ہے، بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، لیکن میں آج
اس پلیٹ فارم سے کچھ میسج دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو، جس وقت آپ ہجرت کر کے قباء میں تشریف لے گئے، پورے علاقے کے اندر ایک شور مچ گیا، غلغلہ مچ گیا۔ اس واقعے کی راویہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں میں اپنے باپ کی اور اپنے چچا یاسر کی بڑی چہیتی تھی، کہ والد کا نام تھا حیی ابن اخطب، یہودی۔ کہتی ہیں کہ صبح صبح میرا باپ اور میرا چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے۔ شام کا وقت ہوا، میں نے دیکھا میرا باپ اور میرا چچا تھکے ماندے، گرتے پڑتے ان کے چہرے اڑے ہوئے، بڑی بری حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ میں اپنے باپ کی اپنے چچا کی بڑی چہیتی تھی، چھوٹی عمر کی۔ ہوتا یوں تھا کہ جس وقت گھر میں آتے تھے سب سے پہلے مجھ کو پیار کرتے تھے، اٹھاتے تھے۔ کہتی ہیں میں حسب سابق اسی طریقے سے بھاگتی ہوئی گئی کہ میرا خیال تھا کہ میرا چچا میرا باپ مجھ کو اپنی گود میں لے گا، لیکن اس دن یہ ہوا میرے باپ نے میرے چچا نے مجھ کو چھڑک دیا، اور میں نے سنا کہ میرا چچا جو ہے وہ میرے باپ سے کہہ رہا ہے ہوا کیا وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم تورات شریف کے اندر باتیں ان کے بارے میں ان کا حلیہ پڑھتے ہیں؟ تو میرے باپ نے جواب دیا، اس نے کہا وہی ہے۔ تو میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا پھر تمہارا ارادہ کیا ہے، پھر تمہاری تمنا کیا ہے، تمہارا مشن کیا ہے؟ اس نے کہا عداوتہ ما بقیت، جب تک زندہ رہوں گا اس نبی کی مخالفت کرتا رہوں گا، اس نبی کے راستے میں روڑے اٹکاتا رہوں گا۔ اور میرے عزیزو اس بات کو جان لیجئے، اسلام کا آپ کے نبی کا سب سے بڑے دشمن یہودی۔ اور پھر ہم نے تاریخ کو پڑھا، ساری زندگی حیی ابن اخطب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں کرتے ہوئے گزار دی۔ عزیزو اس شخص نے کہا تھا جب تک زندہ ہوں اس نبی کی مخالفت کرتا رہوں گا، اس کے ساتھ عداوت کرتا رہوں گا، دشمنی کرتا رہوں گا۔ میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی ہے، اس نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ آؤ اس بات کا عہد کریں، اپنے رب کے ساتھ وعدہ کریں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اس نبی کے جھنڈے کو بلند کرتے رہیں گے، اس نبی کے ساتھ محبت کرتے رہیں گے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، دونوں اس وقت تک تو مومن نہیں ہو جب تک اپنے نبی کے ساتھ اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، ساری کائنات سے زیادہ جب تک تم محبت نہیں کرتے اس وقت تک مومن نہیں ہو۔ اور میرے عزیزو اس بات کو جان لیجئے، جس نے میرے نبی کے ساتھ ان کے دامن کو پکڑ لیا، جو ان کا خادم بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع۔ اس کے موقع پر آپ نے حلق کروایا، آپ نے حلاق کو بلوایا، آپ نے اس سے کہا میرے سر کے بالوں کا حلق کرو۔ اس نے آدھا حلق کیا، اور یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ کہاں ہے؟ ابو طلحہ انصاری کو بلایا گیا، آپ نے اپنے سر کے بال ان کو دے دیے، آدھے سر کے بال جو ہے دوسرے صحابہ کرام کے اندر تقسیم کیے گئے۔ میرے عزیزو یہ جو حلاق تھا اس کا نام تھا مامر بن عبداللہ العدوی القریشی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے۔ اب یہ منظر
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، آپ کا حلق کرنا، اگر عام معاشرے کے اندر دیکھا جائے کوئی بڑی بات نہیں بنتی ہے، لیکن یہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق ہے۔ اور عزیزوں پھر ایک دن ایسا ہوا، معمر بن عبداللہ جو ہے وہ بصرہ کے اندر جاتا ہے۔ بصرہ کے اندر ایک آدمی کو پتا چلا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کا حلق کیا تھا۔ اس نے ان کو بلایا، اپنے گھر میں دعوت دی، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا مجھ کو وہ واقعہ سناؤ کہ کس طریقے سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کیا۔ دوسرا دن ہوا، ایک اور آدمی نے سنا لیا، اس نے بلا لیا، اس نے کہا مجھ کو وہ حدیث واقعہ سناؤ، وہ واقعہ سناؤ، وہ منظر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کیا تھا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے نے، چوتھا دن ہوا، چوتھے نے، پانچویں دن ہوا، پانچویں نے، باری لگ گئی، لوگ جو ہے وہ باری باری ان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ اور میں نے کہا لوگو، جس کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق واسطہ بن گیا، کائنات کے اندر بھی اس کو عزت مل گئی، اور پھر آخرت کے اندر تو عزت ہے ہی ہے۔ اس لیے اس پلیٹ فارم سے، محبان رحمت العالمین کے پلیٹ فارم سے، میں اپنے آپ کو بھی، آپ سب کو بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اس نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کیجیے، اس نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح بنائیے۔ اور وہ نبی وہ ہیں میرے عزیزوں جو اس کائنات کے اندر رحمتیں لے کے آئے، وہ نبی الرحمہ ہے۔ ابھی میرے بھتیجا عمر فاروق کیرانی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ایک طرح دوسرے انداز میں لگا ہوتے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے عربوں کے نام کیا تھے باجا صاحب؟ عربوں کے نام تھے صخر۔ صخر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ صخر کا معنی ہوتا ہے پتھر، صخر کا معنی چٹان، پتھر۔ اب یہ تو نام ہے، عبداللہ صاحب آگے بڑھے، ان کا نام حرب۔ حرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جنگ۔ ان کا نام العاص، العاص کا معنی ہوتا ہے نافرمان۔ مرہ، مرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کڑوا، خنجر۔ اور اس کے بعد ظالم۔ غراب کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، کبے کو۔ یہ نام ہیں، عربوں کے نام تھے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے عربوں کے نام تھے، کسی کا نام حرب تھا، کسی کا نام صخر تھا، کسی کا نام مرہ تھا، کسی کا نام خنجر تھا، کسی کا نام عاص تھا، کسی کا نام کلاب تھا۔ کلاب کس کو کہتے ہیں؟ بولو، یاد کی بات، کلاب، کلاب، کلاب کتے کو کہتے ہیں، قصی ابن کلاب۔ میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک کا نام شہاب تھا، شہاب کس کو کہتے ہیں؟ شغلے کو۔ سہم، سہم کس کو کہتے ہیں؟ تیر کو کہتے ہیں۔ زیب کس کو کہتے ہیں؟ بیڑیے کو، بیڑیے کو کہتے ہیں۔ میں کھڑا ہوں۔ یہ نام تھے عربوں کے۔ اب سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات آپ کو تھوڑا سا یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کن کے نام تھے؟ یہ عربوں کے نام تھے۔ اگر آئے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے دو نام بڑے پسند ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ میرے نبی کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ آمنہ کا معنی جو ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے امن سے ہے۔ ایک ایسی خاتون جس نے اس بچے کو، اس کو جنم دیا جو کائنات کے لیے امن کا پیغام سے کیا نواز۔ اور میرے عزیزوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، جب پیدا ہوئے آپ کے دادا محترم عبد المطلب نے نام کیا رکھا؟ بولو، محمد۔ اور محمد کا معنی یہ ہے جس کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔
कुरैश ने पूछा था ना, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो नाम बड़े मुख्तलिफ होते हैं, अब्दुल मुत्तलिब आपने मोहम्मद क्यों नाम रखा है? कहा मैंने इसलिए नाम रखा है, मैं चाहता हूं इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। और फिर इस कायनात के अंदर रब के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा तारीफ की गई है तो वो मेरे और आपके प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी तारीफ की गई है। आपकी दाइया का नाम क्या था? शिफा। शिफा, शिफा बिन्ते औफ बिन ज़हरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल से इनका ताल्लुक था। आपकी वालिदा मोहतरमा की रिश्तेदार थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा थी। और शिफा का माना जो है मेरे दोस्तों, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज। और शिफा का एक माना जो है वो अच्छी औरत है जो लोगों की मदद करना पसंद करती हो, जो बहुत ज्यादा फिक्र करने वाली हो। और कुरान ने कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। आपकी सबसे पहले दूध वालिदा के बाद किसने पिलाया? सुवैबा। सुवैबा जो है उसका माना क्या है? सवाब से है। और सुवैबा का जो है मेरे भाइयों, उसका एक माना मुतिया है, मुखलसा है, उम्दा बदला पाने वाली है। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपकी दूसरी दाइया का नाम क्या था? हलीमा। हलीमा सादिया। मुझे उस बस्ती में जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैंने बड़े मज़ामीन लिखे, आज ही मैं उस मज़मून को पढ़ रहा था, इसे 10 साल पहले मैंने लिखा था। हलीमा सादिया के गांव में गश्ती में गए, हलीमा सादिया आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल मुत्तलिब ने, सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा मन अंते? कालत अना हलीमा। उन्होंने पूछा कौन हो? कहने लगी मैं हलीमा हूं। कालू फमिन अंते, किस कबीले से तुम्हारा ताल्लुक है? कालत मेरी बनी साद। कहने लगी मेरा बनी साद से ताल्लुक है। तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हिलम बसात, नाम क्या है? हलीमा है। किस खानदान से ताल्लुक है? बनु साद से ताल्लुक है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हिल्मुन मसादुन मा अहसन हाज़ाने फी हाज़ाने गना दहर। कहने लगे क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, एक तरफ हिलम है, एक तरफ सादतमंदी है, खुशबख्ती है। कहने लगे वदफ़ा अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक सीरत नगाह में लिखता है, वो कहते हैं कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जिसके अंदर हिलम पाया जाता है, जिसके अंदर सादत पाई जाती है, मेरे बेटे को उसके हवाले कर। मेरे वो नबी हैं जिसने फरमाया था अब हुनी अज़्ज़ुअफ़ा फ़इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम। आपने फरमाया था अगर तलाश करना है मेरे लिए, जो फुकरा हैं, जो मसाकीन हैं, उनको तलाश करो, उनके अंदर मुझको देखो। मेरा उठना बैठना अमीरों के अंदर नहीं है, फुकरा के अंदर है। फ़इन्नमा तुरज़क़ूना व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम। तुमको जो रिज़्क़ दिया जाता है, जो अल्लाह की तरफ से मदद दी जाती है, वो तुम्हारे जो ज़ईफ़ हैं, जो तुम्हारे कमज़ोर हैं, उनकी वजह से तुमको रिज़्क़ दिया जाता है। और मेरे भाइयों, फिर एक दिन ऐसा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ज़ईफ़ आ जाता है, एक मस्कीन आ जाता है, उसकी खुशकिस्मती, इसका नाम ज़ाहिर बिन हराम था, बादिया का रहने वाला था, बद्दू आदमी था, अनपढ़ था। हदीस के अंदर आता है काना दमीमन, छोटे कद का था, शक्ल सूरत खूबसूरत नहीं, काले रंग का था, गरीब था, अनपढ़ था। लेकिन उसकी एक क्वालिफिकेशन थी, और वो क्वालिफिकेशन क्या थी? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता था। और एक दिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक तमगा दिया। आपने फरमाया इन्ना लिकुल्लि हादिरतिन बादिया व बादियतु आले मुहम्मदिन ज़ाहिर इब्न हराम। आपने फरमाया हर खानदान का एक नुमाइंदा होता है देहात के अंदर,
हमारा आले मोहम्मद का जो नुमाइंदा है वो ज़ाहिर बिन हराम। ज़ाहिर बिन हराम जिस वक्त बादिया से आता ना, देहात से आता, तो पता क्या करता? अपने साथ बेर लेके आता, सत्तू लेके आता, शहद लेके आता, जो देहात की सौगातें हैं वो साथ लेके आता। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वो जाने लगता तो आप उसको शहर की सौगातें नुमाइंदा जो था। एक दिन ऐसा हुआ कि ज़ाहिर बिन हराम आया मदीना शरीफ के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गया। देहाती आदमी, अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी, अपने साथ कुछ चीजें सौगातें लेके आया। बाजार के अंदर खड़ा हो गया, उसने बेचना शुरू कर दी। और जिस तरह आमतौर पर होता है ना, गरीब आदमी को देहात से आता है ना, कोई सौगातें लेके आता है, तो शहरी लोग भागते हुए आते हैं, इसमें सस्ती चीज मिल जाएगी, ताजा चीज मिल जाएगी। और मेरे अली लोग फिर ज़ाहिर के भाग जा उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप वहां पर बाजार में तशरीफ लाए, आपने देखा कि ज़ाहिर बिन हराम बाजार के अंदर खड़े होकर अपनी चीजें बेच रहा है। बाजा साहब, आपको याद होगा बचपन में हम क्या करते थे, जो बड़ा करीबी दोस्त होता था ना, तो पीछे से आके राणा साहब उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख लेते। उसको क्या कहते थे? आज भी उसको क्या कहते थे? जरा पहचान कौन हो? समझ आए? मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ज़ाहिर बिन हराम जो है वो खड़ा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ लाते हैं और आपने उसकी आंखों के ऊपर अपने हाथ रख दिए। उसको नहीं पता कौन है। उसने कहा, कौन है जिसने मेरे हाथ आंखों के ऊपर हाथ रखे हैं? और फिर ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की खुशबू, आपके हाथों के नरमी, उसको जिस वक्त उसको पता चल गया। उसे पता क्या किया मेमन साहब? उसने अपनी पुश्त को नबी अलैहिस्सलाम पीछे रख दिया, तो उसने अपनी पुश्त को नबी अलैहिस्सलाम के सीने के साथ मलना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या अर्शाद फरमाया? आपने अर्शाद फरमाया, मैं यश्तरी हादल गुलाम, उसके कानों को पकड़ा ना ऐसे, आपने फरमाया, मैं यश्तरी हादल गुलाम, इस गुलाम को कौन खरीदेगा? और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, जिस वक्त उसने ये सुना तो उसने कहा, इज़न तजिदुनी कासिदन, कहने लगा, मैं तो जाहिल आदमी हूं, अनपढ़ आदमी हूं, बद्दू आदमी हूं, देहात का रहने वाला हूं, दमीम हूं, काले रंग का हूं, छोटे कद का हूं। कहने लगा, मुझको कौन खरीदेगा? जो खरीदेगा ना ताज साहब, वो सस्ता सौदा नहीं करेगा, मुझको खरीद के कोई क्या करेगा? हाय मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने अर्शाद फरमाया, वलाकिन्नका इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल लस्त कासिदन। आपने फरमाया, साथी तू अपने आप को कहता है कि मैं बेकार आदमी हूं, तू अल्लाह के यहां बेकार नहीं है। तू नबी का मानने वाला है, तू नबी से मोहब्बत करने वाला है, तू नबी का सुहाबी है। अल्लाह के यहां वलाकिन इंदल्लाहि गाल, हदीस के अल्फाज हैं। आपने फरमाया, अल्लाह के यहां तू बहुत कीमती है, अपने आप को छोटा मत समझ। गाल 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 गाली नहीं आप कहते, गाल के लफ्ज़ है। आपने फरमाया, वलाकिन इंदल्लाहि गाल, तुम अल्लाह के यहां बड़े गाली हो, बड़े कीमती हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीजों, हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी की सीरत सुनने के लिए आए हैं, हम उनका तज़किरा, उनकी बातें सुनने के लिए आए हैं, जिनके बारे में किसी शायर ने कहा था, हस्सान बिन साबित ने कहा था, वह अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी, वह अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी, वह अजमल मिनका लम तलिदुन निसा। हस्सान, तेरी तुरबत के ऊपर करोड़ों रहमतें हो, तूने ये बात कही थी,
अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहा था, वो अहसन मिन कलम तरकत ऐनी वो अजमल मिन कलम तरजुन निसाओ, आपसे खूबसूरत चेहरा किसी माँ ने जना ही नहीं है। आपसे खूबसूरत चेहरा किसी माँ ने जना ही नहीं है, और आपसे हसीन और खूबसूरत वजूद किसी आंख ने देखा ही नहीं। और फिर वो कहते हैं, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। कहने लगे, मेरे हबीब आप इस तरह हर किस्म के अयूब से पाक है कि लगता यूं है कि जब रब आपको बना रहा था, आप रब के पास खड़े थे, आप रब से कह रहे थे अल्लाह मुझको ऐसे बना, तो आप कहते चले गए और रब आपको वैसे बनाता चला गया। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। आका, मैं आपके हुस्न की क्या तारीफ करूं? आपके बारे में हस्सान बिन साबित के बाद खादिम रसूल अनस बिन मालिक आ जाते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शहादत देते हैं, कहते हैं खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीन, कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। एक हदीस के अंदर आता है 9 साल खिदमत। कहते हैं वल्लाहि मा ज़रबनी वला शतमनी वला क़ाल ली उफ़्फ़िन। अल्लाह की कसम, नबी अलैहि सलाम ने न मुझको कभी मारा, न मुझको गाली दी, न मुझको बुरा कहा, हत्ता कि मुझको उफ़ तक नहीं कहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आपका रब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को मुसलसल बुलंद करता रहता है, और फरिश्ते भी दुआ करते रहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुझे और आप को हुक्म दिया गया है, और इसीलिए आज मैं आपको वजीफा बताऊं। हमारे पास कई दफा लोग कहते हैं मुजाहिद साहब मुश्किल है, परेशानी है, लड़ाई है, झगड़ा है घर के अंदर, बीवी बच्चे बात नहीं मानते हैं, नौकरी नहीं है, कारोबार के अंदर खसाना है, जाओ मैं आपको दी दूं। शाह वलीउल्लाह का एक कौल है, उन्होंने फरमाया था हम जिस मुकाम पर हैं, जिस जगह पे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दुरूद शरीफ की बरकत से। मेरे अजीजों, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, मुझसे कोई भी, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, अपने मुश्किलात के हल के लिए कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मेरे रब ने कहा था, हमने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले को बुलंद कर दिया, आपकी शान को बुलंद कर दिया। और अल्लाह अपने हबीब के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं कि पूरे कुरान पाक के अंदर एक मर्तबा भी या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। शाह साहब, ये बात सुनने वाली है, बड़ी अहम बात। पूरे कुरान पाक के अंदर दूसरे नबियों को नाम लेके पुकारा है, लेकिन जब मेरे नबी की बात आई अंदाज बदल गया। आइए जरा सुनते हैं। और मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा, ये हम जो कहते हैं ना या मोहम्मद, ये ना कहा, क्या कहा करें वो भी बता दो। आदम की बात आई कुरान पाक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। या आदम, आप आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत के अंदर रहो। नूह अलैहिस्सलाम की बात आई, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमरुन गैरु सालिह। नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि तेरा बेटा जो है, तेरा बेटा सुलभ में से तो है, लेकिन तेरा बेटा इसलिए नहीं है कि उसके अमल अच्छे नहीं हैं, लिहाजा अगर अमल अच्छा ना हो तो वो चाहे बेटा हो उसकी कोई हैसियत नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया या इब्राहीम कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर कहा, या इब्राहीम, या यहया खुज़िल किताबा बिकुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। और मेरे अजीजों, अंबिया को नाम लेकर पुकारा। लेकिन फिर बस करना चाहूँगा, बात समझने वाले हैं। मेरे नबी का जब जिक्र आया, अंदाज बदल गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को रब ने पुकारा तो किस तरह पुकारा? आपने, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरे अजीजों, रब ने नबी का नाम नहीं दिया है, क्या फरमाया? या अय्युहन नबिय्यो। और याद रखिए, नबी सा जो है ये शर्फ की बात है, इज्जत की बात है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर 28 मरतबा नबी का जिक्र किया है। जहां नबी आता है कुरान पाक के अंदर, उससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर। और एक और जगह फरमाया कि या अय्युहल मुज़म्मिल, नाम लेके नहीं पुकारा, मुदस्सिर कहा, मुज़म्मिल कहा, नबी कहा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और मेरे अज़ीज़ों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, अल्लाह ने आपके ऊपर जो कुरान नाज़िल किया है उसको लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो मैं यह कर रहा था कि अल्लाह ताला अपने हबीब का जब जिक्र करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में। कभी कभार होता है ना, राणा साहब, माँ को अपने बेटे से प्यार आता है, बाप को अपने बेटे से प्यार आता है, तो वो पता है क्या कहता है? वो कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला है, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा शेर है, ये मेरा क्या है? ये मेरा बहादुर है। अल्लाह को भी अपने नबी के ऊपर प्यार आया। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, मेरा बशीर, मेरा नज़ीर, मेरा हादी, मेरा रसूल, मेरा नबी, मेरा मुज़म्मिल, मेरा मुदस्सिर, मेरा मोहम्मद, मेरा अहमद, मेरा सिराज मुनीर मद्दाइयन इलल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंदाज में पुकारा, नाम लेकर। मोहम्मद नहीं कहा, या मोहम्मद नहीं कहा है, बल्कि उनकी सिफ़तें बयान करते रहे। इसीलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे। औरतें भी नमाज पढ़ने के लिए आया करती थी। पिछली सफ़ों में औरतें खड़ी, समय तो बका तिफ़्लुन युनादी उम्मा। आपने एक बच्चे की आवाज़ सुनी, बच्चा रो रहा है। बच्चा रोते हुए क्या है? अपनी माँ को पुकारता है। बड़े खूबसूरत अल्फाज डॉक्टर नाबलसी ने बयान किए, मोहम्मद रातब नाबलसी, बहुत अजीब शख्सियत है। वो कहते हैं कि समिअत बकाओ तिफ़्लन युनादी उम्महु बिबकाइही। नबी रसूलुल्लाह ने सुना बच्चा रो रहा है। आपने क्या किया? आप आदतन फजर की नमाज आप ज्यादा लंबी उस पे किरात किया करते थे, मालूम है ना बात। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किरात को मुख्तसर कर दिया, सलाम फेरा। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, आज आपने खिलाफे मामूल अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समेतो बका तिफ़लिन युनादी उम्महु। मैंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी जो अपनी माँ को पुकार रहा था। फ़अरदतु अन अरहमहु। फरमाया कि मैंने कहा मैं इस बच्चे के ऊपर रहम करूं, अपनी नमाज को मैंने मुख्तसर कर दिया। इन्नहु अन्नबियुर रहमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ जरा सा बड़ा हो जाता है ना, उसके यहाँ प्रोटोकॉल आ जाता है। बदर की जंग में जा रही है
और अब आपको पता है कि बदर की जंग के अंदर सवारियों की कमी थी, एक एक ऊंट के ऊपर कई की सवार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऊपर बैठते थे और एक पैदल चलता। बात समझने वाली, नो प्रोटोकॉल। नबी अलैहिस्सलाम जिस ऊंट के ऊपर थे उसमें 3, आपके साथ हजरत अली इब्न अबी तालिब और अबू लबाबा, और तीसरे कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब 2 ऊपर बैठते हैं और एक पैदल चलता है बारी बारी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी बारी आती है, अली भी अर्ज करते हैं, अबू लबाबा भी अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल आप ऊपर बैठे रहे, हम आपकी जगह पैदल चलते हैं। प्रोटोकॉल का तकाजा तो यही है, हम आपके बच्चों की तरह हैं, हम आपके अदना सहाबी हैं, हम पैदल चलते हैं, आप ऊपर बैठे रहे। अब सुनिए आपके नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि मा अंतुमा बिअक्वा मिन्नी व मा अना बिअगना अनिल अज्र मिनकुमा। आपने फरमाया कि सुनो, ना तो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर, तुम मुझसे ताकतवर तो नहीं हो, मैं भी पैदल चल सकता हूं, और ना ही मैं अजर व सवाब से महरूम रहना चाहता। इसलिए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स मैदान जंग के लिए जा रहा हो, जो मुजाहिद मैदान जंग के लिए जा रहा हो, उसके कदमों के ऊपर अगर गुबार लग जाए, फरमाया जिस कदमों के ऊपर वो गुबार लग जाए, जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम हो जाती है। इन्नहु नबीउर रहमा, इन्नहु नबीउर रहमा, वो रहमत वाले नबी हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो दूसरी बकरी के सामने बकरी को ज़बह कर रहा। देखिए बातें बड़ी मामूली है लेकिन अब बड़ी अहम है। अपनी उम्मत को तज़किया नफ्स किया, लोगों को सिखाया तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। 2 बकरियां थी, एक बकरी को वो ज़बह कर रहा है दूसरी बकरी के सामने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नाराज हो गए। आपने क्या इरशाद फरमाया? हल्ला हजबतहा, आपने फरमाया हल्ला हजबतहा अन उख्तिहा, तुमने क्या करना था, तुमने क्या, तुम्हें ये चाहिए था इस बकरी को उससे छुपा के रखते, उसको उससे दूर ले जाते। आपने फरमाया अतुरीदु अन तमीतहा मर्रतैन, क्या तुम चाहते हो इसको 2 दफा मौत आए? इन्नहु नबीउर रहमा। क्या बात है मेरे अजीजों, मैं आज आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है, लोगों के साथ रहम, लोगों के साथ शफकत के साथ पेश आओ। इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर रहम करो, जो आसमान वाला है वो तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। आप में मदीर भी होंगे, मैनेजर भी होंगे, अपने अपने इदारे के सरबराह भी होंगे। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, मुकाम दिया है। मेरे अजीजों, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, लोगों के साथ शफकत करें, ये आपके नबी की तालीमात हैं। फिर हजरत अनस बिन मालिक की बात को दोहराऊंगा कि उन्होंने कहा, और मैं कई दफा वल्लाही मैं बैठ के सोचता हूँ, था कितने सादतमंद थे अनस बिन मालिक, लेकिन अपने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को देखिए, आपके अखलाक को देखें। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ये है वो अखलाक। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सबक कर दिया। आपने फरमाया रहमल्लाहु इमरान समहन इज़ा बाआ, जिस वक्त मामला खरीदो फरोख्त करनी है उस वक्त नरमी इख्तियार करो, और जब किसी से कर्ज लेना है उस वक्त भी नरमी इख्तियार करो। और यार बात सुन, हदीस के अंदर आता है ना, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने इरशाद फरमाया अंतुम तुलका, आपने फरमाया जाओ तुम आजाद हो, जाओ आज तुम्हारे पर ला तसरीब अलैकुम, जाओ आज तुम सबको माफी दी जाती। मेरे अजीजों, हम उस नबी की उम्मती हैं, उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, अपने अंदर मोहब्बत, प्यार, अखलाक, मरफ़त, लोगों के साथ मोहब्बत कीजिए। और इस बात को जान लीजिए कि इस्लाम का दहशत गर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है।
ये सब गर्व जो है वो हमारे ऊपर ठोंसता है। और याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के सबसे ज्यादा ऊंचा करने वाले, अमन का पैगाम देने वाले, सारी दुनिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम दिया और उसी के ऊपर अपने साथियों की भी तरबियत की। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक दफ़ा फिर मैं नबी रज़ा साहब आपका शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए हैं। जनाब राणा अकरम साहब हमारे भाई हैं, जनाब मेमन साहब तो हमारे बाबा रियाज हैं और इनकी क़ियादत, इनकी सियादत, इनका स्टेज पर बैठना, इनकी बातें अहालियाने रियाज ये हमेशा इंशाअल्लाह प्रोग्राम होते रहेंगे। एक दफ़ा फिर जहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इस बात का फिर ऐलान करूँगा इंशाअल्लाह हम रूटीन के मुताबिक बिइज़्निल्लाह ताला मुहिब्बान रहमतुल आलमीन के प्लेटफार्म से इस किस्म के प्रोग्राम करते रहेंगे, अपने नबी की सीरत को बयान करते रहेंगे और नबी अलैहिस्सलाम के झंडे को ऊंचा करेंगे इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी जब तक जिंदा रहेंगे। और आखिरी बात करके खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह। वाजा साहब नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए एक शख्स आया, उसने आके कहा मुतासा या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताएं क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया क़यामत के बारे में पूछते हो, फमाज़ा अद्दत लो, तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है। उसने कहा कोई लंबी चौड़ी ना नमाज़ें हैं, न ज़्यादा तहज्जुदें हैं, न ज़्यादा ज़कात है, न ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है बात। उसने कहा एक बात है। उसने कहा मेरे दामन के अंदर एक चीज़ है, मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता हूँ और मेरे माँ बाप कुर्बान हो। आपने इरशाद फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जाओ अपने सीनों के ऊपर इस बात को लिख के ले जाइए कि जिसके साथ आदमी मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसके साथ हम इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, हाय 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 अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा, हमें हौज़ कौसर से उनके हाथों पानी नसीब फरमा। और अल्लाह तू गवाह रहना हम बड़े खताकार गुनाहगार हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।